Assalamu alaikum to all dear students. This is your Miss Ramsha and hope you all are fine and safe. So in this session I'll give you the revision about your chapter which is atom and its structure. So open page number 72. As you know that I'll give you the introduction about the whole chapter already. So come page number 70. Come page number 81. In this page you can see the fill in the blanks, which is you are not done in your copy but you have to prepare it for your mock test. So here is your fill in the blanks. The structure of molecule of water is H2O. Number 2 is most of the space inside the dash is empty. मैंने आपको बताया था जो most of the space होता है एक एटम का वो क्या होता है, empty होता है. An atom cannot dash freely in the universe. एक एटम जो है वो freely move नहीं हो सकता दुनिया के अंदर. The outermost shell of an atom is called dash shell, valence shell. The number of protons and dash are always same in an atom. As I told you about that, protons और electrons जो होते हैं वो जो होते हैं सेम होते हैं इन नंबर्स में. दूसरी जो आपकी 6 fill in the blanks है वो भी सेम है. Each atom has dash atomic number, same atomic number. The atomic mass depends upon the number of dash and neutrons. जो आपका एटॉमिक मास का नंबर है वो डिपेंड करता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे. द वैलेंस ऑफ बोरॉन इज डैश +3. द वैलेंसी ऑफ डैश इज नाइट्रोजन इज -3. कार्बन एंड क्लोरीन हैज dash isotopes, 2 isotopes. Describe whether the given statement is true or false. यहाँ पे आपके पास जो है वो true false की statements है जिसको आपको बताना है कि which is true and which is false. Number 1 is hydrogen atom has 1 proton, 1 neutron and 1 electron. Yes, it's false. Deuterium is an isotope of carbon. It's false. Number 3 is each isotope of hydrogen contains 1 electron. It's true. K shell has lower energy as compared to the outer shell. It's true. The number of electrons in each shell is the same. It's false. The molecule consists of at least 2 atoms of the same kind of different kinds. It's true. The space where electrons revolve is called energy level. जो space होता है जहाँ पे आपका electrons revolve हो रहे होते हैं orbit में वो आपका energy level कहलाता है. The capacity of electron in n shell is 32. हमारे पास जो capacity होती है electrons की वो 32 होती है, 32 होती है. It is true. The atomic mass of oxygen is 8. False. The atomic structure of deuterium is false. ओके, सो आपने जो है इस चैप्टर के अंदर आपको असाइनमेंट में 2 क्वेश्चंस दिए गए थे विच इज नंबर 1 इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एटम एंड मॉलिक्यूल. एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट हैविंग ऑल इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज एटम. ये इसकी डेफिनेशन थी. फिर आया आपके पास मॉलिक्यूल की हेडिंग. अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 2 एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड्स. ये आपकी मॉलिक्यूल की डेफिनेशन थी. उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 था विच इज डिफाइन द एटॉमिक नंबर. गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक नंबर. द नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिनोटेड बाय Z. एग्जांपल हाइड्रोजन और हीलियम. यहाँ पे आपको उनकी डेफिनेशन मिलेगी. सो ये आपके असाइनमेंट का और मंथ ऑफ जून का फर्स्ट चैप्टर था विच इज एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपने 2 क्वेश्चंस किए, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स किए. आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया गया. आपने इसी चैप्टर को बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी कॉपीज में करना है. सबसे पहले आपने इंडेक्स बनाना है, उसके बाद जो है आपने उसका टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद आपने अपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, फिर आपने फिल इन द ब्लैंक्स और आपने ट्रू फॉल्स अटेम्प्ट करनी है. जैसे कि मैंने अभी आपको आंसर भी उसके दे दिए हैं.
एज यू ऑल नो दैट कि आप लोग के मॉक टेस्ट जो हैं वो होने वाले हैं, तो उसके लिए आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी मसला होता है, सो यू हैव टू आस्क योर सब्जेक्ट टीचर इन योर क्वायरी टाइम्स, or you may ask also your class teacher if you have any difficulty. In this chapter, here is your remaining topic, which is valency and valency shell. Valency and valence shell. The outermost shell of an atom is known as valence shell. जो आपकी outer shell की जो आपका आउटर मोस्ट शेल होता है, इससे वैलेंस कहा जाता है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर आउटर मोस्ट शेल। इट मे बी कम्प्लीटली फिल्ड, या तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा, या ये, और इट मे बी पार्शियली फिल्ड, या ये पार्शियली मतलब थोड़ा थोड़ा करके फिल्ड होगा। एज यू नो दैट ईच शेल कैन accommodate स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। जैसे कि आपको पता है कि हर शेल अपने अंदर इलेक्ट्रॉन का कुछ नंबर रखता है। If the outermost shell or valence shell of an atom is complete, अगर आपका outermost shell और valence shell जो है complete हो जाता है atomic number से, so of an atom complete, it means it cannot accommodate, इसका मतलब ये accommodate नहीं है more electrons in it and the valence of such atom is 0, और आपका जो valence की जो नंबर है वो 0 पे पहुंच जाएगा। हीलियम एंड नियॉन आर such atom which have zero valency in case of incomplete outermost shell. आप यहाँ देख सकते हैं कि इन पेज नंबर 77 पे आपको यहाँ पे एक चार्ट भी दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, जो आपको कंप्लीट करना है अपने आउटर मोस्ट शेल को, वो नंबर्स रिक्वायर्ड है, मोड ऑफ कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे आपका वैलेंस है। Here is your second remaining topic, which is isotopes. According to the John Dalton's theory, आपके जो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम जॉन डाल्टन है, उनकी थ्योरी के मुताबिक all the atoms of an element exactly alike, having no difference in their masses and physical and chemical properties. But later on, लेकिन उसके बाद some scientists discovered that all the atoms of an element may or may not be alike. जॉन डाल्टन का कहना था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि वो कहते थे ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एग्जैक्टली अलाइंग हैविंग नो डिफरेंस। वो कहते थे कि जितने भी एटम्स हैं वो सेम है, उनमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन आगे जाके जब इसको और मजीद डिस्कवर किया गया तो उसके बहुत से डिफरेंसेस निकले। ईच एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज सम एटॉमिक नंबर बट देयर एटॉमिक मास में बी डिफरेंट। Such atoms of element which have same atomic number but have different atomic masses are known as isotopes. वो एटम जो के एलिमेंट रखते हैं सेम एटॉमिक नंबर का, बट उनकी एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, उन्हें कहा जाता है आइसोटोप्स। इन सच एटम्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अंदर द टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। Here is your isotopes of hydrogen. Have 3 isotopes. हाइड्रोजन जो है वो अपने अंदर 3 isotopes रखता है, which is protium और ordinary hydrogen number 1, number 2 is deuterium and number 3 is tritium. ठीक है, here you have the first ordinary hydrogen. It has 1 proton. यहाँ पे आपके पास अंदर आपको नजर आ रहा होगा, in this figure you can see clearly. You have 1 proton, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में, एंड इट्स न्यूक्लियस हैज नो न्यूट्रॉन इन इट, और ये न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे 0 हुआ है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 एंड इट्स मास इज ऑल्सो 1। इसका एटॉमिक नंबर और इसका मास जो है वो 1 पे है। प्रोटियम और ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज डिनोटेड बाय H। इसको जो है डिनोट किया जाता है H से। यहाँ पे आपके पास है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम हैज 1 proton as you see and 1 neutron as you see, and here is 0 electron. ठीक है, इसे डिनोट कर रहे हैं D, और is denoted by D or H2. Deuterium. Its nucleus bears 1 proton as you see
and 2 neutron. As you see, while 1 electron revolves, जबकि आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है around the nucleus in the orbit. Its atomic number is also 1, but its mass is 3. Deuterium is denoted by T or H3. Deuterium is the heaviest isotopes in them. Deuterium जो है वो सबसे भारी isotopes होता है इनके अंदर. The table 7.5 given below show in similarities and differences between isotopes of hydrogen. यहाँ पे भी एक टेबल मौजूद है जो कि आपको डिफरेंस शो कर रहा है इन सब के बारे में. So here is the short summary of your chapter atom and its structure. Hope you all are understand very well. So स्टूडेंट्स इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और बी सेफ, अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.